your goal is not in her. Hello my dear students, welcome back to my channel Chemistry Learning. Student, today we will study about a new one topic, separating the components of a mixture. Okay, this topic is divided into three cases: mixture of two solids, mixture of a solid and a liquid, third one is mixture of two liquids. Okay, so today we will discuss only first one, separation of mixture of two solids. In this we will discuss three cases in detail, one by one. First one is separation by a suitable solvents, second is separation by sublimation, and third one is separation by magnet. Okay, so let's start now. Yes student, this is a lecture number 7, class 9, chapter 2, is matter around us pure. Okay, so today in this lecture we are going to study about separating the components of a mixture. तो मिक्सचर से कंपोनेंट जो मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं उनको कैसे सेपरेट किया जाता है, डिफरेंट टाइप टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं इनके लिए, तो हम इनके बारे में स्टडी करेंगे आज. स्टूडेंट, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, ये वाला लेक्चर मैं आपको 3 पार्ट्स में कंप्लीट कराऊंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. एज वी नो, मैनी ऑफ द मटेरियल्स अराउंड अस आर मिक्सचर्स. जो मोस्ट ऑफ मटेरियल होते हैं हमारे चारों ओर क्या हैं, वो सब मिक्सचर हैं. ठीक है, दीज मिक्सचर्स हैव 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस और कॉन्स्टिट्यूएंट्स mixed in them. It may not be possible to use a mixture as such in homes and in industries. Okay, so we may require only 1 or 2 separate constituent of a mixture for our use. So we have to separate the various mixture into their individual constituent. तो mixture है तो हम क्या चाहेंगे कि वो individual constituent form में हमें मिले, to make them useful in our day to day life. So in this way, the method of separation of mixture depend upon the nature of its constituents. ठीक है, जो मेथड होता है सेपरेशन का मिक्सचर से, वो किस पे डिपेंड करता है, जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से वो मिक्सचर बना है उसके नेचर पे डिपेंड करता है. ठीक है, अगर कोई मिक्सचर लेते हैं हम तो उसकी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, जो उसमें प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे वो मिलकर बना है. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस दीज वन बाय वन. ओके, स्टेप टू स्टेप मैं आपको ये पॉइंट्स में बताऊंगी ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, solubility, size of particles, behavior towards magnet and volatility, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा. तो ये सारी प्रॉपर्टीज उस कॉन्स्टिट्यूएंट की होगी जो मिक्सचर में प्रेजेंट हैं. ठीक है, ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. दिस डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज यूज्ड टू सेपरेट देम फ्रॉम ए मिक्सचर. यही सारी प्रॉपर्टीज जो डिफरेंस है, हो सकता है किसी मिक्सचर में किसी कॉन्स्टिट्यूएंट का बॉइलिंग पॉइंट कम हो, किसी का ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, डेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, ऐसी साइज ऑफ पार्टिकल छोटा बड़ा हो सकता है. तो ये जो डिफरेंस है इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज यूज टू सेपरेट दैम फ्रॉम ए मिक्सचर. क्यों यूज़ किया जा रहा है उसको सेपरेट करने के लिए किसी मिक्सचर से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस डिफरेंस in their physical properties. Okay, different mixtures are separated by using different physical process. Okay, तो ये different physical processes के द्वारा हम क्या करते हैं, different mixture separate करते हैं. The various physical processes which are commonly used to separate the constituents of mixture are, अब वो physical process क्या हैं जो commonly use की जा रही हैं for separate the constituent of a mixture are sublimation, magnet, solvents, filtration, centrifugation, evaporation, crystallization, chromatography, distillation, fractional distillation and separating funnel. Okay, in some cases more than one of these processes are used for separating a mixture. Okay,
Next, separation of mixtures may be divided into following types. So here we will discuss these three cases in detail one by one. First one is mixture of two solids. We will discuss mixture of solid and a liquid, and third we will discuss mixture of two liquids. So in this lecture we will discuss only first one part, mixture of two solids. Okay, let us discuss now separation of mixture of two solids. तो यहाँ पे अब हम सेपरेशन पढ़ेंगे मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड्स का, जिसमें दो सॉलिड मिक्स होंगी. ठीक है, उनको कैसे सेपरेट किया जाता है, नाउ वी विल डिस्कस दैट वन. लेट्स स्टार्ट नाउ. All the mixture containing two solid substances can be separated by one of the following methods. अब इसमें भी कुछ मेथड्स होते हैं इसको भी सेपरेट करने के. जैसे फर्स्ट मेथड है यहाँ पर बाय यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट. ठीक है, पहला हम कौन सा मेथड डिस्कस करेंगे इसमें, मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड्स में बाय यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे. देन सेकेंड मेथड इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन का यूज़ करके हम टू सॉलिड्स, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स सेपरेट करेंगे एंड बाय यूजिंग ए मैग्नेट. ओके, नाउ कम टू सेपरेशन बाय ए सुटेबल सॉल्वेंट. तो बाय यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट कैसे सेपरेट किया जाता है मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, अब ये डिस्कस करते हैं. First point is here, this method is used when one constituent of a mixture is soluble in a particular liquid solvent, क्योंकि suitable solvent method है ना ये separation का. Other constituent is insoluble in it. तो जब एक constituent हमारा solvent में dissolve होगा और दूसरा constituent insoluble होगा, तो then we will use this one method of separation. ठीक है. This difference in the solubilities of the constituent of a mixture can be used to separate them. This difference in the solubilities of the constituent of a mixture का मतलब ये है कि यहाँ पे ये किस पर डिपेंड करेगा, जो दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हमने मिक्सचर में डिज़ोल्व किए हैं, दो सॉलिड, उनकी सॉल्युबिलिटी पावर पर. जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, इट मीन्स वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होगा. ठीक है, और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा. तो अगर एक डिज़ोल्व है एक नहीं है तो इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर इज़ सॉल्युबल इन वाटर. शुगर इजीली सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, वेयर एज सैंड इज़ इनसॉल्युबल इन इट. और अगर हम सैंड को उसमें ही डाल दें तो सैंड डिज़ोल्व नहीं होगी, वो सेटल डाउन हो जाएगी. सो ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट. इसीलिए इसको सुटेबल सॉल्वेंट मेथड बोला जाता है, सेपरेशन बाय ए सुटेबल सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे वाटर एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. यस स्टूडेंट, this figure showing to separate a mixture of sugar and salt. Okay, and how it is done, now we will discuss. According to figure in part A, जो फर्स्ट वाला है, the mixture of sugar and sand is taken in a beaker and water is added to it. The mixture is stirred, इसको हम को घुमाएंगे to dissolve the sugar in water, ताकि शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाए. एंड अब सेकंड फिगर में शुगर डिज़ोल्व हो गई है एंड जो सैंड है रिमेन्स अनडिज़ोल्व. ओके, नाउ द शुगर सॉल्यूशन कंटेनिंग सैंड इज़ फिल्टर्ड बाय पोरिंग ओवर ए फिल्टर पेपर. इसको फिल्टर पेपर पे पोर किया जाएगा. बाय फिल्टर पेपर हम इसको फिल्ट्रेट कर देंगे एंड कीप्ड इन ए फनल. और जब फिल्टर करेंगे तो हम इसको फनल में डालेंगे. ठीक है. आफ्टर दैट इन केस सी, sand remains as a residue on the filter paper and sugar solution is obtained as a filtrate in the beaker kept below the funnel. ठीक है, जो फनल के नीचे ये बीकर दिख रहा है, इसमें हमें क्या ऑब्टेंट होगा, शुगर सॉल्यूशन, और जो सैंड है वो फिल्टर पे रहेगी. ठीक है, वो जो फिल्टर किया उसी पे रहेगी फनल पे. द शुगर सॉल्यूशन इज एवोपरेटेड केयरफुली टू गेट द क्रिस्टल ऑफ शुगर. फिर इसको एवोपरेट करने के लिए रख देंगे शुगर सॉल्यूशन को, ताकि हमें क्रिस्टल ऑफ शुगर ऑब्टेंट हो जाए, मिल जाए. ठीक है, और इन दिस वे ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड हैज़ बीन सेपरेटेड बाय यूजिंग वाटर एज द सॉल्वेंट. ओके,
सो ये फर्स्ट सेपरेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कम टू सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। तो ये भी मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स को सेपरेट करने का मेथड है। Let us discuss now the process in which a solid on heating directly changes into vapor without passing through the liquid state, and on cooling vapors directly change into solid state is called sublimation. तो sublimation वो process है जिसमें कोई solid heat करने पे directly change हो जाता है into vapor विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में बदले वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर स्टेट में। एंड ऑन कूलिंग वेपर्स डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड स्टेट, और जब कूलिंग हो जाएगी तो उसमें जो वेपर्स हैं और कूलिंग होने पर जो वेपर्स हैं वो डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे इनटू सॉलिड स्टेट, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज The solid substance which undergoes sublimation is said to be sublime. तो sublime वो substance होगा which undergoes sublimation, जो sublimation process के अंदर जा रहा है। The solid substance obtained by cooling, और after cooling जो substance obtained हो रहा है, जो substance हमें मिल रहा है after cooling, the vapor is known as sublimate. तो ये दो important point हैं, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड। सब्लाइम कौन होता है, सब्लाइम कौन सा सब्सटेंस होता है जो सब्लिमेशन प्रोसेस के अंडर जाता है, ठीक है। एंड सब्लिमेट वो प्रोसेस होता है जो आफ्टर सब्लिमेशन प्रोसेस कूलिंग होने पर ऑब्टेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कम्स टू द सब्सटेंसेस लाइक अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नैफ्थलीन एंड एंथ्रासीन sublime on heating and can be recovered in the form of sublimate by cooling their vapors. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, आयोडीन, कैम्फर, नैफ्थलीन एंड एंथ्रासीन, ये सभी सब्लाइम होते हैं ऑन हीटिंग, ठीक है। इट मीन्स they undergo sublimation and can be recovered in the form of sublimate by cooling their vapors. Okay, now these are the example of separation by sublimation. First is ammonium chloride, B is iodine, C is camphor, D is naphthalene and E is anthracene. So these are undergo sublimation on heating. Next come to separation by magnet. तो ये भी मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स को सेपरेट करने की प्रोसेस है, ठीक है, सेपरेशन बाय मैग्नेट। इसमें भी मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स को सेपरेट किया जाता है। लेट अस डिस्कस नाउ। इफ ए मिक्सचर्स कंटेन आयरन एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग ए मैग्नेट। देखिए कितनी इजी डेफिनेशन दी है। अगर कोई मिक्सचर कंटेन करता है आयरन एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, इट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग ए मैग्नेट, क्योंकि जो आयरन होता है वो मैग्नेट की टूवर्ड अट्रैक्ट करता है, ठीक है, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो इजीली सेपरेट हो जाएगा किसी सॉल्यूशन से। फॉर एग्जांपल, ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग ए मैग्नेट। जब कोई मिक्सचर है आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर का, तो उसमें आयरन फिलिंग बाय मैग्नेट easily सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज आयरन फीलिंग्स आर अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट एंड स्टिक टू इट, ओके, बट सल्फर इज नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, ओके। दिस फिगर शोज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ आयरन फीलिंग एंड सल्फर पाउडर. So here iron filling being separated from a mixture of iron filling and sulfur by using a magnet, okay. So in this case iron filling are attracted by a magnet and it will stick to it, but sulfur is not attracted by a magnet, ठीक है. So in this way we can easily separate iron filling by this method, okay. और इसको मैग्नेटाइज्म भी बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है. And this example showing separation of scrap iron from a heap of waste material by using an electromagnet. So ये separation by magnet method था.
टू मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स के लिए. ओके, सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स. In tomorrow lecture we will discuss mixture of a solid and a liquid. Okay, thank you class.